सो कई बार जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, So many times when you overthink, आप में से कई लोग होंगे कि आप में से कई लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए आप चीजों को सोच रहे होंगे। so many times you might be thinking or overthinking about anything. शायद कुछ लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा कि अगले महीने की सैलरी काफी नहीं होगी। So there might be people who might be thinking that from next month onwards, my one salary is not enough. कुछ लोग ने अभी सोच लिया होगा कि मेरे बच्चे भी शायद गरीबी रहेंगे। And some people might have thought that my children will be poor. कुछ लोगों ने ये मान लिया होगा कि मैं जिंदगी में कभी घर नहीं बना पाऊंगा। And they have agreed that they cannot build a house for पता है themselves. ये सारी चीजें आप घर पर फ्री जब होते हैं ये बैठे बैठे सोचते रहते हैं। You know, these kind of things happens when you sit free in your house. ये ओवर थिंकिंग आपके शरीर को भी खराब कर रही है और आपकी सोच को भी खराब कर रही है। This overthinking is destroying your body and your mind. पता है ऐसा नहीं है कि बाइबल में किसी ने ओवर थिंकिंग नहीं करी। And this is not like in Bible if someone has not overthink. ऐसा नहीं है कि बाइबल में किसी को एंजाइटी नहीं हुई। And it's not where in Bible those people have not got anxiety. ऐसा नहीं है कि बाइबल में कोई प्रभु का जन डरा नहीं। And it is not possible that there is no man of God in Bible who have not gone through fear. आज हम लोग बाइबल में से एक विशेष व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। And today we are going to meditate about one particular person. एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के अभिषेक से भरा हुआ था। And one person who was filled with the anointing of God. एक ऐसा व्यक्ति जो कहता था और होता था। And one person who whenever tells anything it happens. एक ऐसा व्यक्ति जिसने बारिश को रुका दिया। And one person who commanded the rain and it was stopped. एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा और बारिश हो गई। And one person who commanded the rain and it started happening. और उसका नाम एलिया था। And his name was Elijah. आपको पता है एलिया भी एक समय पर इस फियर का और इस एंजाइटी का शिकार हो गया था। You know, at some moment, Elijah was also the part of anxiety. और उसके पीछे का जो रीजन था, And the reason behind this, वो आज हम लोग समझने वाले हैं। today we are going to understand about it. वो कैसे अपने आप को उस निराशा में लेकर गया। And how Elijah took himself in that sorrowful way. आपको पता है जैसे ही वो अपने आप को निराशा में लेकर गया, And the moment he took himself in that moment. जैसे ही वो अपने आप को उस ओवर थिंकिंग में लेकर गया, The moment he took himself in that overthinking, वो जिस फ्लो में मिनिस्ट्री कर रहा था वो फ्लो टूट गया। the way he was doing it, his ministry's flow was broken up. आपको पता है आपके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। You know, God has planned many big things in your life. प्रभु ने आपके जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम रखे। God has kept many amazing works in your life. प्रभु ने एलिया के लिए बहुत बड़ा काम रखा था। God has kept amazing work in Elijah's life. मगर उसके ज्यादा सोचने के कारण, But then because he was overthinking, मगर उसके बार-बार चीजों को सोचने के कारण, because he was thinking and overthinking, उसके फियर और उसके डर के कारण, because about his fear, वो अपने जीवन में और कुछ प्रभु के लिए नहीं कर पाया। because of his fear, he cannot do anything for Allah. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying? यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए उनके जीवन में प्रभु ने बड़ी अच्छी योजनाएं रखी All हैं। those who are sitting here, God has kept amazing plans and works in your life. मगर आपके डर और आपके ज्यादा सोचने के कारण आपके जीवन की योजनाएं खत्म हो रही है। But then due to your fear, your God's plan has been destroying in your life. आप मेरी बात समझ रहे You हैं? understand what और I'm उसको saying? बोलिए कि आपके जीवन में प्रभु की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। सब लोग अपने बाइबल को निकालेंगे। 1 Kings chapter 19 पहला राजा उसकी 19वीं और हम लोग कुछ बातों को इसमें से सीखने जा रहे हैं। सो हम लोग 19वां अध्याय पढ़ेंगे So we are going to read the 19th chapter और इसकी पहली आयत से हम लोग कुछ चीजों पर मनन करेंगे। and we are going to meditate from the first और verse मैं onwards. चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इसे सुने। And I want everyone to listen it carefully. कोई पढ़ रहा है? किसी के पास है माइक? तब आहाब ने हाँ इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए हाँ। कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हाँ तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरबा को पहुंचा
पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया. ओके, अब सब लोग बहुत ध्यान सुनिए. Listen it carefully. दूसरी आयत में ऐसे लिखा हुआ है. And in the second verse, मैं पहली और दूसरी आयत आपके लिए पढ़ देता हूँ. I'm going to read the first and second verse. तब अहाब ने इज़बेल को एलिया की सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला. Now Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, so may the gods do to me and even more if by this time tomorrow I do not make your life like the life of one of them. सब लोग इधर ध्यान से सुनिएगा. Look at me and listen to me. यहाँ पर बाइबल कहती है कि आहाब राजा ने अपनी पत्नी इज़बेल से कहा, And here the Bible says where the king Ahab told to his wife Jezebel, आहाब एक राजा है, that you are a king, उसकी पत्नी का नाम इज़बेल है. and his wife's name is Jezebel. बोली आहाब एक राजा है, Ahab is a king, उसकी पत्नी का नाम इज़बेल है. his wife's name is फिर Jezebel. बोलो आहाब एक राजा है, उसकी पत्नी का नाम इज़बेल है. उसकी पत्नी का नाम Jezebel है. इज़बेल के पति का नाम क्या है? Ahab. और आहाब की पत्नी का नाम क्या है? Jezebel. और राजा का नाम क्या है? Ahab. राजा की रानी का नाम क्या है? Jezebel. वेरी गुड. सो आहाब राजा ने अपनी पत्नी इज़बेल से कहा, So King Ahab told his wife Jezebel किस तरीके से एलिया ने उसके नबियों को मार डाला. the way Elijah had killed his prophets. और बाइबल कहती है कि अब ये इज़बेल ने एलिया नबी के पास, एलिया प्रोफेट के पास ये संदेशा भिजवाया कि कल मैं इसी समय मतलब 24 घंटे में तुझे मार डालूंगी. And Jezebel sent a messenger to Elijah saying, at the same moment tomorrow I will kill him. सब लोग इधर देखिए ध्यान से. Look at me. मुझे 10 बार बोलना पड़ रहा है. I wanted to tell this for 10 times. सब लोग ध्यान से सुनिएगा. Listen it carefully. सो एलिया प्रोफेट नॉर्मल प्रोफेट नहीं था. So Elijah was not a normal prophet. इसने सारे वो बाल के नबियों को खत्म किया था. That's why the Baals, the prophets were killed. इसने बारिश रुकाई थी. Who stopped the rain. इसने कहा और बारिश हो गई थी. And when who told the rain and it was raining. सो ये नॉर्मल विश्वासी नहीं था. So he was not a normal believer. ये एक प्रोफेट था. And he was a prophet. और इसके पास वो इज़बेल रानी ने खबर पहुंचाई कि 24 घंटे में तुझे मार डालूंगी. And where Jezebel has sent a message to Elijah, within 24 hours he'll be killed. ये एक प्रकार की धमकी थी. And this was a kind of a threat. और बाइबल कहती है कि इस धमकी को सुनकर एलिया भविष्यवक्ता भागने लगा. And Bible says by listening this threat, Elijah was running away. पहली और इंपॉर्टेंट बात, The first and important thing, कभी भी शैतान के झूठ पर बिलीव मत करिए. you should never believe on the lie of Satan. जब प्रभु की योजना आपके जीवन में होती है, You know, when God's plans are there in your life, जब आप प्रभु के द्वारा चुने हुए होते हैं, when by God you are chosen one, शैतान आपके जीवन में झूठ को बोने का काम करता है. you know, Satan will always try to sow lies in your life. और वो झूठ कहीं से भी आपके कानों तक पहुंचाएगा. And that lie can come from anywhere in your ears. प्रॉब्लम क्या है पता है? आप उस झूठ को एक्सेप्ट करने लगते You हैं. know, the problem here it is that you start accepting that lie. वो धमकी को एक्सेप्ट करने लगते You हैं. try to accept that threat in your life. मुझे ऐसा कहने दीजिए, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो तो बिना धमकी के ही डरने लगते हैं. Let me tell you, those who overthink about anything, they are already dead before any kind of threat. जो लोग चिंता करते हैं उनको कुछ वर्ड सुनने से पहले ही वो डरने लगते हैं. And those who overthink about anything, they will be destroyed before any threat. आपको पहली बात याद रखना है कि शैतान आपके कानों में ऐसी कोई बात पहुंचाता है जिससे आप डरने लगे और भयभीत होने लगे. You know, the first thing you need to remember is whenever Satan tried to put any lie words in your ears, you need to understand that is something against, and that it will bring fear in your life. इसलिए कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हर एक व्यक्ति को अपना नंबर क्यों नहीं देते. And that's why many people ask me, why don't you share your number to everyone? मैं जिन जिन लोगों को नंबर दूंगा वे लोग, कई उनमें से लोग नकारात्मक शब्दों से भरे हुए होंगे. And if I give my numbers to everyone, there might be many people who might be
filled with all these कई negative लोग thoughts. डराने का काम करेंगे. There might be many people who will try to make me fear. शैतान उन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो प्रभु के कहलाते तो है मगर है नहीं. So, Satan can use those people, those who are chosen by God, but they are not chosen by God. मैं एक मीटिंग में जा रहा था I was traveling and going to a meeting, और किसी ने कहा कि मैं उस मीटिंग में बहुत अंधकार को देख रहा हूँ. and someone told me that I am seeing a darkness in this meeting. मैं उस मीटिंग में बहुत प्रॉब्लम को देख रहा हूँ. I'm seeing many problems in this meeting. और जैसे उन्होंने वर्ड कहा The moment he said these words, to मैंने me, सुना, and I heard, मगर लिटरली कह रहा हूँ मैंने उससे अनसुना कहा किया. and at the same moment I ignored those things. अब मेरी बात समझ रहे हैं. Do you understand what I'm saying? मैं नहीं जानता कि उन्होंने कितना प्रभु से सुनकर प्रभु से पाया है, I don't know how much he has heard from the God, मगर मेरा फेथ कहता है but my faith says, यदि वहां पर दो लोग भी रहे, even if there are two people in that meeting, प्रभु उनकी जिंदगी को बचाएगा. God will save those two souls. अब मेरी बात समझ Do रहे you हैं. understand what I'm saying? मैं किसी के भी नकारात्मक शब्दों पर बिलीव करना पसंद नहीं करता. I never like to believe in negative words or thoughts. अगर कोई आकर आपको स्वप्न बता रहा है, If anyone is coming to you and sharing his dreams, अगर कोई आपको आकर बोल रहा है कि सिस्टर मैंने आपके जीवन में अगले महीने ये होते हुए मैंने स्वप्न देखा, and if anyone is telling that next month I've seen in my dreams that these kind of things are happening, what you should do, आपको क्या करना चाहिए? just cancel that dream, उसे cancel करना चाहिए. just cancel that word. उस word को cancel करना चाहिए. आप मेरी बात सुन रहे हैं. Do you understand what I'm कई saying? लोग आपके पास आकर बोलेंगे मैंने आपकी मृत्यु देखी. And if someone has come to you and told you that I've seen your death, कई लोग कहेंगे कि मैंने आपके जीवन में मैंने बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखा. and many people might say that I've seen financial crisis in your life, What you should do, आपको क्या करना what you चाहिए? should reply, आपको क्या जवाब देना चाहिए? इग्नोर करो, You need to ignore it, क्योंकि वो वर्ड प्रभु की तरफ से नहीं है. because that word is not from God. अगर प्रभु की तरफ से कुछ है, प्रभु डायरेक्टली आपसे बात करेगा. If anything is from God, He will directly talk to you. प्रॉब्लम क्या है बताएं? You know what is the problem here? आप उन वर्ड्स पर बिलीव करना प्रारंभ You करते हैं. start believing in those words. पता है शैतान झूठा है और झूठे का पिता है. You know, Satan is a liar and he's the father of liar. वो झूठ को अपने पास आने मत दो. You don't allow those lies to come near आप to पता you. है आप ओवर थिंकिंग में और एंजाइटी में क्यों आते हैं? You know, why do you come in this overthinking and anxiety? क्योंकि आप पूरी दुनिया को सुन रहे हैं. Because you're hearing the whole आप दुनिया के world. लोगों को सुन रहे हैं. You're hearing the people of this आप world. रिश्तेदारों को सुन रहे हैं. You're hearing the relatives. वो लोग जो वर्ल्डली लाइफ जी रहे हैं, आप उनके बातों को सुन रहे हैं. You're hearing to those people who are living this worldly life. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, उन नकारात्मक बातों को सुनना जल्दी से बंद करो. You know, the first and important thing, you need to stop hearing those negative thoughts and words. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying?